Friends, welcome everybody on Happy Gut, Happy Life. It's a beautiful day जहाँ पे आप अपनी गट की दुनिया को जानोगे कि आपके गट में क्या है और क्यों वो हेल्दी नहीं है. और हेलो अंजन जी एंड सो मेनी पीपल. ब्यूटिफुल इवनिंग. एंड सबसे पहले टू स्टार्ट आई वांट टू टेल यू, हम सब ने हम we are a team of 3 people: Dr. Reena Jain, Tina, who's a yoga expert, and I, who's a mindful coach. हम तीनों ने ये टॉपिक्स शुरू ही किया, क्यों किया और हमने रेजोनेट ही क्यों किया ये टॉपिक से. तो हमने अंडरस्टैंड किया ये एक बेसिक चीज है जो हर इंसान को इसका रिक्वायरमेंट है. और हम कई बार हमें हेल्प नहीं मिलती है और हमें समझता नहीं है कि कैसे हमें आगे बढ़ना है. तो हमें इसलिए लगा कि सबसे पहले हमें ये टॉपिक से चालू करना है. नाउ सेकंड थिंग जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप फॉर एग्जांपल ऑलरेडी मेडिसिन में हो इन टर्म्स ऑफ आपके डाइजेशन को रिलेटेड, तो आप प्लीज वो कंटिन्यू करना. हम आपको नेचुरल चीज से आप नेचुरली कैसे हेल्दी कर सकते हो वो रास्ता बता रहे. वो ग्रेजुअली ओवर द मोमेंटम आप कर पाओगे, आप फॉलो कर पाओगे. ओके, दैट इज पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 3 इज आपको जो भी क्वेश्चन लगता है हम आपको एक लिंक भेजेंगे और वो लिंक पे आप सारे क्वेश्चंस आप भेज सकते हो. वो हम कैटेगरी वाइज हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और हर एक क्वेश्चन का हम आंसर आपको, जैसे आज की कुछ भी क्वेश्चंस है हम कल कंपाइल करके आपको बताएंगे. ओके, तो लेट अस वेलकम डॉक्टर रीना जैन, जिन्होंने बहुत सारे पेशेंट्स को ये वाले प्रॉब्लम से हेल्प किया है, बचाया है एंड रिट्राइव किया है. सो ओवर टू डॉक्टर रीना जैन. हाय रीना, you can speak. Yeah. Hi, good evening, everyone. Namaste. I hope you all are doing good. So today I'm going to talk for some time about the plan, जो हमारा 7 days का plan है, उसके बारे में बात करते हैं. And namaste to everybody. Yeah, namaste. So we are going to talk about Happy Gut, Happy Life plan. Is that another diet plan that is going to revolve around your lifestyle? This plan is going to focus on a word called happy and reset, because it's about that we reset our bodies and it manages and digests food. We reset our body so that it can actually perform and doing all the action it needs to do efficiently and exactly in the way it was designed to. हम सबको मालूम है कि ऊपर वाले ने, भगवान ने हमारी बॉडी कितनी ब्यूटीफुली डिजाइन करी है कि ये अपने आप हील हो सकती है. इसका सिस्टम कितना अच्छा है. Now this program should continue for about 7 days. The concept is very general in nature. That will be a lot of you attending this session who have diabetes, cardiovascular issue, cancer, weight loss problem. And so you need to speak to your doctor, your physician, but mostly is going to make sense to you. For once, let's start using common sense than running to some professionals for advice all the time. But yes, if you are on any medication, you think it might affect that, then it is always better to speak to your doctor, your physician before starting any new program. Well, this is not going to be a diet program. This is called a Happy Gut, Happy Life Reset Lifestyle Plan. And you need to understand the science behind it. We're going wrong today. The science behind it, what is going wrong? मतलब जो साइंस हमको गॉड ने सिखाया पर हम गलत तरीके से इसको अपना रहे हैं. हम most of us, and we can see that with the rising number of statistics in terms of disease and inability to lose weight, with the amount of gyms, we have nutritionist doctor, we have hospitals, medical technology, fancy medications, all of that stuff. फिर भी हम इतना सारा अवेलेबल है ऑनलाइन, इतना सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, फिर भी nowadays people are going more into normal things: constipation, acidity, gas, bloating. It's an everyday thing now and it's so common. And what are we doing? Most of us are ignoring that.
चलो ठीक है यार, कल ठीक हो जाएगा, आज प्रॉब्लम है कल ठीक हो जाएगा. So we have just become sicker and sicker, fatter and fatter. And most people, if you look at the diabetes count, it's going worse. Only including cardiovascular cancer has become an epidemic. It's getting worse every single day. Not just primary cancers, but metastatic cancer. By that, I mean you have a cancer. You get it the conventional way. Your doctor says, hey, you are in remission. You go back to your normal lifestyle. 6 months later, what happened? Or after a year, what happens? You come back with a metastatic cancer. मतलब कि आपको कैंसर किसी बॉडी के दूसरे पार्ट में फैल गया है. And again, you have to go on medication. You have to get treated again. Diabetes people के साथ क्या होता है? With heart disease, you on more fancy medication. You have fancy equipments to tell you how bad your problem is or what your metrics are, but no one is telling you how to fix it. क्या आपको कभी क्या आप अगर डायबिटीज है और आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, क्या कभी आपको कोई डॉक्टर बताता है कि ये रिवर्स हो जाएगा, ये रूट से हील हो जाएगा? अगर आपने कोई मेडिकेशन से स्टार्ट किया है तो उसका डोज बढ़ते 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 इट इज गोइंग टू गो टू इंजेक्शन. पर कभी आपने सुना है कि वी आर गोइंग टू डॉक्टर फॉर शुगर और डायबिटीज, आपका कभी डोज कम हुआ है? हार्डली इट हैपेंस, वेरी रेयर केस. हमेशा डोजेस बढ़ते ही जाते हैं. नो वन इज टेलिंग यू कि कैसे क्योर करना है. नो वन इज गोइंग टू रूट कॉज. कोई भी उसकी जड़ तक तो पहुंचना ही नहीं चाहता है. क्यों? फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड, telling you how to get the root cause. Thyroid issue, your doctor tells you, oh, you got to be on the thyroid medication for the rest of your life. You take it, it's your TSH look good, your T3 looks good, your T4 looks good, but guess what? You have another problem. Fatigue, brain fog, hair loss, weight gain, sluggish, feeling of fatigue throughout the day because you are not got the root cause why you have got the thyroid problem. आपको थायराइड प्रॉब्लम कहां से चालू हुआ है, कब चालू हुआ है और किस सिचुएशन में चालू हुआ है? You have not gotten the root cause why you have a thyroid problem in the first place, and you think, oh, I'm on medication, it's all good, you are in statin, your cholesterol is fine, so you think it gives you the right not to change your lifestyle. सिर्फ हम मेडिकेशन पे जाते हैं पर हम ध्यान ही नहीं देते, हम फोकस ही नहीं करते हैं कि हमको हमारा लाइफस्टाइल चेंज करना है. And you continue with the smoking, binging on alcohol, continue eating all the junk food. So medication just blinds you from the actual cause. It needed to sustain you, to maintain you, but it will never kill you until you take responsibility and accountability for your own health. And you wake up one day and say, I'm going to take charge. This is okay. I don't want pill to keep me alive now. I don't want pill to keep my metrics in order now. Yay, we have to overcome two things that we don't like to hear. Too often that it's greed. Okay, which is the number of one cause of disease, and laziness. No human being want to hear that you are lazy, or you are indisciplined, or you are greedy, हमको किसी को सुनना अच्छा नहीं लगता है कि if some patient is coming to me and if I hear about his lifestyle, and then I back of the mind I know that somewhere his lifestyle is because of his laziness, this disease he's getting, but I can't tell because the patient don't want to hear. But this is the actual thing. ये true, ये real face है. Nobody wants to hear that. But the truth is, if you want to heal your face, the truth, most of us are living in denial today. Anyway, let's get straight back to the topic, the Happy Gut, Happy Life Reset Lifestyle Program. Forget about the next 7 days. Forget about all the diet plans that you are currently be it paleo, आप कुछ paleo follow कर रहे होंगे, vegan होंगे, ketogenic diet होगा, whatever, it's okay. A personal shout out, I have many clients who are probably on my personalized program right now. This not be for you, but you can discuss it with our team because your program are already customized as per your body type. This is for everyone else.
So yeah, this was for the 7 days program. What we are going to do now. Now let's understand what is naturopathy and why naturopathy. So anyone can tell me what is exactly naturopathy? आप लोग क्या समझते हैं naturopathy? I think most of you must be knowing. We don't know about this naturopathy. Okay. Sorry. Fine. Healing our body with the help of natural foods. Yeah, right. Eating food as close to the nature as possible. I mean, not having anything artificial, or I mean, completely depend on what nature gives you and Taking become one with the nature. Taking support of these 5 elements of which the body is made of. Right, perfectly right. 5 elements. So we have lots So, of yeah. answers on the chat also. Swati is saying treatment with natural things. Gauri is saying eating only lively food. Mannat is saying what is available in the kitchen. Manoj is saying without medicines. Dr. Parmeshwar is saying treatment without medicine. Sheetal is saying nature, and Dr. Sheila organic food. तो यस आप सबका ही आंसर लिटरली द सेम ही है कि नेचुरल फूड दैट इज व्हाट. तो आर यू एबल टू सी द स्लाइड? मैंने स्लाइड शेयर किया है. आर यू एबल टू सी? अच्छा, ओके फाइन. Okay, so I think you must be reading the slide, what is naturopathy, and you all are right in a way. सबने अपना तरीका बताया, everything is right. Now I want to tell you as a naturopathic nutritionist, what my treatment, how do I do my treatment? So my treatment sessions include building a great rapport with my clients, understanding the patient's condition, their lifestyle, helping them change in due to course of time, thereby significantly improving their quality and essence of life. My forte lies in dealing with lifestyle disorders and psychometric conditions. The programs are all personalized, customized, based on client requirements. I also believe that if the upstairs is clean, the downstairs will automatically be clean. कि अगर हमारा दिमाग clean है, clear है, we are focused and we know what we want, how we want, and what we want to eat, what type of lifestyle we want, तो हमारा gut अपने आप ठीक हो जाएगा. You know, mind and gut relation is there. To explain this, I lay great emphasis on mental health and emotional well-being. That has helped a large number of people cope up with their mundane lives and help them achieve optimal health. Now going to the next about what is modern medicine. So the modern medical system is a medication, is a drug used to diagnose, cure, treat, or prevent disease. A drug therapy is an important part of medical field and relies on the science of pharmacology for continual advancement and no pharmacy for appropriate management. So if you compare naturopathy and this you can call a modern medical system means allopathy. So allopathy is very, very useful in emergencies. In accidents, we really need it. But for the long-term disease, जो हमने ही चालू किया है, हमारे ही कई ignorance से, हमारे ही कई lifestyle में कहीं कुछ issue था, कुछ problem था, हम ध्यान नहीं दे पाए, तब हम over a period we started those disease and वो छोटा सा magnet हमने लगा लिया in the form of constipation, acidity, bloating, वो छोटे-छोटे magnets होते हैं. अगर वो magnet हमारी body में लग गया, वो ऐसा magnet है कि फिर वो दूसरे बड़े-बड़े सारे disease लेता रहेगा, pull करता रहेगा. So day by day it is high BP होगा, फिर कुछ होगा, like it won't stop until we treat our root cause. So medical system, modern medical system is really helpful in emergency cases, but the big disease like cancer, diabetes, constipation, our lifestyle has to be changed naturally. So now next we are
going to understand what is gut. So today we are going to learn about what is gut, why is gut important, how to keep our gut happy, its causes and natural remedies. So we have अभी हमने काफी सारा हमारा वीडियो हो गया है, हमने साइंस के अकॉर्डिंग सब तरीके से समझ लिया है. So we are not going to waste more of time about understanding more of biology. We will understand normal language में कि ये क्या होता है and how to heal it. And ये किस किस पार्ट को and कैसे कैसे कहाँ से इसका कनेक्शन होता है. So what is gut? Your gut is made up of a system called digestive tract. It starts at your mouth and goes down a pathway called esophagus, empties into bubble called stomach, and then the stomach processes the food, then transfer it to a small intestine, and then it goes to large intestine. So this is a small description about what is gut. Now, how many bacteria are there in gut? क्या आपको पता है हमारा गट एक पूरा यूनिवर्स है, ये एक पूरी दुनिया के जैसे है, ये अपने आप में एक अलग ही कायनात है, यू कैन से अ ब्यूटीफुल कायनात. So our body depends on trillions of bacteria that live in our gut. This gut sends vital signal every day to your immune system, to your brain and to your organs in your body. Research shows that within 24 hours, you can change your bacteria in your gut from bad population of bacteria to a healthy population of bacteria, where you can do this just by introducing fruits and vegetables into your diet on a daily basis. It's a fiber in the fruit and vegetables that feed the bacteria, that feed that good bacteria. That's the only food and the bacteria in your gut can eat and keeps them vital. बाकी आप जो भी फूड देंगे अपनी बॉडी को, वो उस बैक्टीरिया को वो कुछ भी नहीं खाएगा, वो सिर्फ साइड में जमा होता जाएगा, लेस बनती जाएगी. तो जो गुड बैक्टीरिया है वो सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और अच्छा न्यूट्रिएंट फूड देंगे, वही चीज वो लेगा, वही चीज वो एक्सेप्ट करेगा. इट इज ओनली गोइंग टू एक्सेप्ट गुड थिंग. ओके, तो डॉक्टर रीना, आप जैसे बोल रहे हो कि हमने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाए, 24 आवर्स में वो गट बैक्टीरिया, जो बैड बैक्टीरिया, वो गुड बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो सकता है, राइट? बट फिर भी लोग जब खाते तो क्यों नहीं खाते? मे बी बिकॉज वो हमने गट बैक्टीरिया अच्छा हमने खाते उसको चेंज करने की कोशिश करी, मगर हमने माइंड से जो हम सिग्नल भेजे जा रहे कॉन्स्टेंटली, वो हम एक दूसरी ऊर्जा भेज रहे, उसके वजह से भी वो कोरिलेट करके आपका प्रॉब्लम वैसे ही रह रहा है, राइट? Right. So that's the only food the bacteria in our gut can eat and keeps them vital, and healthy keeps the good guys on the playground and get rid of the bad guys. And the end result of this reduce inflammation through the whole body. Now, how important is our gut health? So if we will have a good gut health, our immune system will be good, our sleep will be good, skin health will be good, mental health, digestion, all these aspects will be good. सिर्फ एक गट हेल्थ की वजह से ये सारा हमारे बॉडी का हर ऑर्गन, हर पार्ट जुड़ा हुआ है इससे. Now let's go to immunity. What is immunity? So immunity is the capacity of human body to defend itself against substance or infections such as parasites, bacteria, or viruses that can make us ill. Or immune, do you know this? हमारा body का 70% of immune is in gut.
हम गट में ही उसका इम्यून है 70%, और अगर हम उसको राइट फूड से ट्रीट नहीं करेंगे तो हमारा इम्यून खराब हो जाएगा। और आई थिंक वी एवरीबडी हैव फेस दिस, हमको आई थिंक यूनिवर्स ने और दुनिया ने अच्छे से सिखा दिया है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज इम्यूनिटी एंड इम्यून हेल्थ फॉर अस आफ्टर कोविड। अभी भी कोविड के कुछ नए आते ही रहते हैं, नए डिजीज, नए इन्फेक्शन, नई एलर्जीज। सो हमारा इम्यून कितना जरूरी है, वी एवरीबडी लाइक नाउ एवरीबडी इज अवेयर आफ्टर कोविड। यू नो, जिसको लाइक एक ही घर में रहते हैं, आई हैव सीन मेनी ऑफ माई पेशेंट, kids are not getting COVID and elderly people are not getting COVID, but the middle-aged people have got. Elderly people को especially बहुत कम लोगों को हुआ था मेरे सराउंडिंग में, मैंने देखा, because they used to do intermittent fasting. After 6 या 7 वो लोग खाते नहीं थे. They used to eat only home cooked food, जिससे उनको वो जंक फूड अवॉइड करा, तो वो ओनली अपनी बॉडी को गुड फूड, गुड बैक्टीरिया को सिर्फ अच्छा फूड ही दे रहे थे, और वो भी बहुत लिमिटेड पोर्शन में, जितना पोर्शन की जरूरत थी, रिक्वायरमेंट। सो आई हैव सीन एल्डरली पीपल इन दिस कोविड, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हुआ है, बट मेनी एल्डरली पीपल 80+, 85+, they didn't get कोविड उनको टच भी नहीं कर पाया, एंड लाइक ग्रेट, मतलब एक मिरेकल जैसा ही था मैंने जब देखा तो। या नाउ नेक्स्ट विल गो टू स्किन हेल्थ। गट एंड स्किन का भी रिलेशन है। इफ आवर गट हेल्थ इज नॉट गुड, हमारे बॉडी में गुड बैक्टीरिया के कंपेयर में अगर बैड बैक्टीरिया ज्यादा है, तो वो जो टॉक्सिन है वो कहाँ जाएगा? सो एवरी ह्यूमन बॉडी इज डिफरेंट। किसी का इम्यून सिस्टम में इफेक्ट होगा, किसी का स्किन हेल्थ में इफेक्ट होगा। स्किन हेल्थ कैन इफेक्ट लाइक यू कैन गेट सोराइसिस, एक्जिमा, रोजेशिया, दूसरे स्किन कंडीशंस आपको आ सकते हैं, एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ बैड gut bacteria, because you're not feeding it right food. So हम सबको लगता है ओहो स्किन हेल्थ मतलब हमको सिर्फ हमारे का ध्यान रखना है। नो, अगर आप इंटरनली ग्लो कर रहे हैं, इंटरनली आपकी बॉडी नीट क्लीन, एकदम क्लीन है, आप अच्छा सा डिटॉक्स कर रहे हैं, अच्छे से पानी दे रहे हैं, अंदर से भी शाइन हो रही है, तो बाहर तो ऑटोमेटिक चमकेगी, चमकना ही है। देन यू डोंट हैव टू पुट ऑल दोज सनस्क्रीन एंड डेली बेसिस पे इतने क्रीम्स, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। सो क्लीन योर बॉडी एक्सटर्नली एंड गेट द ग्लोइंग स्किन. So that is the raz of good glowing skin. Now next we'll go to mental health. आप सभी ने सुना होगा कि gut is our second brain. किसने सुना है? And who all are aware about this? Can you put something about this in the chat box? कि हमारा जो first brain is our brain and the second brain is our gut. तो हमारे gut को बहुत समझ आता है. Yes, I think you all have heard about this. Yes. Yeah. So हमारा gut is very smart. There's a direct correlation. Yes, Padma, you're right. Yeah. So बोलते हैं ना, हमारे कहावत है, आई थिंक आप सब लोगों ने सुना होगा, जैसे नानी दादी बोलते हैं कि जैसा खाते हैं वैसा बन जाते हैं, और जैसा सोचते हैं, जैसा हम खाते हैं वैसी हमारी सोच हो जाती है. तो इफ यू आर ईटिंग अ गुड हेल्दी फूड, आप खुद भी, या व्हाट वी ईट वी बिकम, राइट. जैसा अन्न वैसा मन. जैसा अन्न वैसा मन, राइट. एकदम सही बोले आप. या सो तो जो अन्न हम खा रहे हैं, अगर हम हेल्दी अन्न खा रहे हैं, हमारा पुराना देसी इंडियन लाइफस्टाइल, आई रियली बिलीव इंडियन देसी खाना, मैं खुद बहुत देसी हूँ, आई रियली बिलीव इंडियन. अगर हम वो नॉर्मल हमारा सब्जी रोटी, हमारे जो नानी दादी ने हमको खाना बनाया है, बनाना सिखाया है, एकदम फ्रेशली कुक्ड खाना इन द राइट काइंड ऑफ वेसल्स, और फ्रेश वेजिटेबल्स एकदम बनाया और तुरंत खा लिया, जिससे हम कभी बीमार नहीं होंगे. अगर हम वो वाला खाना खाएंगे, वैसे ही ताजा ताजा खाना खाएंगे, इमीडिएटली 2 to 3 hours इट विल इफेक्ट आवर ब्रेन.
आपने खुद ट्राई भी किया होगा. Even I have tried many times. The day I'm going out, suppose I'm eating any pizza, pasta, ice creams, वो दिन ना शाम को आते एकदम you feel fatigue, bloated लगता है, और you know low. नहीं हमारा ब्रेन एक्टिव को तैयार ही नहीं है, वो भी थक गया और वो भी बैठ गया, राइट. सो द नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव हेल्थ. हेलो. Now it's good. Now it is better. We have lost her due to poor network connection. Okay, so probably she'll go in. So I'll continue till the time she's back in. So Okay. digestion, now what is digestion? तो जैसे हमने शुरू में भी वीडियो चलाया और हमने बताने की कोशिश करी कि हमारा डाइजेशन जो हम खा रहे, खाने से हमारे ट्रैक से वो हमारे पेट में जा रहा है, एंड देन एक तरह से जो किडनी और हमारा लिवर है वो सीव का काम कर रहा है, और सीव के साथ में वो अंदर जाके डाइजेस्ट हो रहा है. जैसे वो ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू प्रोटीन्स एंड सो ऑन, वो अल्टीमेटली कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में बनते हैं जो कि हमारे अलग अलग जगह में बॉडी में यूज हो जाते हैं, और जो नहीं यूज होते वो एलिमिनेट हो जाते हैं. मतलब जो जिसकी यूटिलिटी नहीं है उसको निकाल देते हैं हम लोग, एक्सर्ट कर देते हैं. ओके, तो कई बार क्या होता है, जैसे शुरू में वीडियो भी मैंने जो चलाया था वो यही था कि बिकॉज हमारा हम नॉर्मली नहीं कर रहे, वो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो वो एक दूसरे के बाद वो पाइल अप होता जा रहा है, और वो आपका जो अंदर का इंटेस्टाइन है, somewhere or the other it is internal of the intestine is not clean. Now just imagine बचपन से लेके अभी तक हम सब कॉन्स्टेंटली खा ही रहे, हमने कभी अपने इंटेस्टाइन को ब्रेक ही नहीं दिया. मतलब जैसे कोई जन फास्टिंग करते हैं, राइट, कोई जन फास्ट भी नहीं करते हैं, और वी हैव बीन जस्ट ईटिंग. सो if you don't give a break to your system, like आपने फास्टिंग करी या अलग अलग तरीके हैं, that helps you to take it further. Okay, so sleep हमारा sleep directly related है. जब आपका पेट ही अभी इसका एक लॉजिकल रीजनिंग अगर आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो तो, कि आपने खाना खाया और वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो आपकी बॉडी की एनर्जी इज गेटिंग यूटिलाइज्ड फॉर डाइजेशन. मतलब मैक्सिमम आपकी बॉडी की एनर्जी डाइजेशन के टुवर्ड्स वो लेके जा रहा है, और जब वो ज्यादा उधर जा रहा है तो बाकी चीजें ऑब्वियसली इट इज ओवरवर्किंग. जब वो ओवरवर्क कर रहा है तो ऑब्वियसली आपको नींद, आपको फटीगनेस, एवरीथिंग रिलेटेड वन बाय वन स्टार्ट्स हैपनिंग इन योर लाइफ. ओके, so going forward, signs of bad gut is आपके स्किन में इरिटेशन होगी, स्टमक में पेन होगा, इरेगुलर स्लीप होगी, हाई शुगर न्यूट्रिशन, आप मतलब शुगर हाई होगा, एडिक्वेट जो अगर हेल्दी है तो आपको अच्छी नींद आएगी, स्ट्रेस लेवल लो होगा, आप फूड अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर पाओगे, हाइड्रेटेड रहोगे, और आप अपना चेंज डाइट फॉलो कर पाओगे. तो अंजलि, I can take, like, sorry, my internet was Yeah, bad. sure, sorry guys. Yeah. So thank you Anjali for doing it. She has explained it very well. I was listening it. And now signs of good or bad gut health. Agar your gut is not healthy, so your skin will get a lot of disease, like I told, psoriasis, eczema, rosacea. Your stomach will be bad. Your sleep will not be regular. Constant fatigue, a high sugar nutritional plan, unnecessary weight changes. कभी तो एकदम weight कम हो जाएगा, कभी बढ़ जाएगा. Now sign of good healthy gut: adequate sleep, lowering your stress levels, monitoring food intolerance, staying hydrated is a very important thing, and changing diet according to your body and time.
many of us, we don't know that male or female, we all have hormones, और every 5 to 6 years हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं. तो अकॉर्डिंगली जरूरी नहीं है कि जो खाना हम बचपन में 10 साल पहले खा रहे थे वो आज भी हमको सूट करे, नहीं. So we have to keep trying and keep changing our diet थोड़ा थोड़ा हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग, right? Yeah. So how should I take care of my gut? So fermented food, rich source of fiber. अब fermented food में आ गया कंजी, आ गया बीटरूट और कैरेट कंजी हो गया, कर्ड राइस आ गया जो हमारा इंडियन लंच में, मोस्टली हमारे इंडियन खाने में, साउथ इंडिया में तो कर्ड राइस इज वेरी फेमस, इट्स अ वेरी गुड फर्मेंटेड. नॉर्थ इंडिया में बटर मिल्क आफ्टर द लंच यू कैन हैव, यू नो. Then rich source of fiber. So fiber, where you get the fibers? You get good fibers in fruits, vegetables is the best fiber you can give. Oil pulling. Then next you have to hydrate yourself. 7 to 8 hours of compulsory sleep. वो भी sound sleep. ऐसा नहीं कि आप सो रहे हैं और आपकी नींद 2 से 3 घंटे में ही, या रात को 2 या 3 बजे एकदम डिस्टर्ब हो गई, आप उठ गए and then again you are back to your mobile. So that is not a healthy sleep pattern. You have to get up early in the morning, do yoga, do meditation, do journaling, do manifestation, affirmation, and hydrate yourself. Now we are going to talk about healthy lifestyle changes. तो सुबह से उठ के हमको so first thing you should do without brushing is oil pulling. Oil pulling हमारी बहुत ancient आयुर्वेदिक practice है, which we all should follow. बहुत से लोग follow कर भी रहे होंगे, and who have not yet started, don't wait. Let's start today itself, tomorrow morning itself. चलिए साथ में मिलके करते हैं. So let's talk about benefits of oil pulling. So oil pulling is beneficial for reducing the amount of bacteria in the body. And why oil pulling is important? It can reduce harmful bacteria from mouth, could help reduce bad breath, may help prevent cavities, improves gum health, reduce inflammation, and oil pulling is good for heart, cures tooth decay and boost immune system. आपको मालूम है जब रात को हम सोते हैं तो सोने के टाइम में जिनको एसिड रिफ्लक्स है उनका एसिड रिफ्लक्स ऊपर की तरफ आता है, जिनको नहीं है उनका भी जो भी टॉक्सिन है, जो बैड बैक्टीरिया है, ऊपर की तरफ आता है जब रात को हम सोते हैं. एंड सुबह उठते ही अगर हमने ऑयल पुलिंग किया विद कोकोनट ऑयल, सेसमी ऑयल और मस्टर्ड ऑयल, हमने अगर ऑयल पुलिंग किया तो सारा बैड बैक्टीरिया सुबह सुबह वो निकल जाता है. इफ एवरीडे बेसिस यू आर डूइंग इट, you're improving your dental health, you're improving your heart health. It's very necessary, right? And now I'll tell you the procedure about oil pulling, which is very simple. आपको सुबह उठते ही ब्रश करने के पहले 1 tablespoon coconut oil, sesame oil और mustard oil मुंह में लेना है. You have to swish it for 5 to 15 minutes. Remember, you don't have to swallow it, or you don't have to spit in the toilet. You have to spit in a cover and throw it in the dustbin. Then you have to rinse your mouth with the warm water. आपको warm water से gargle करना है 5 मिनट अच्छे से, ताकि जो भी तेल का और जो भी टॉक्सिन और मुंह में है वो सारा निकल जाए. And then after that you have to do your brush. You know, believe me, after doing this oil pulling, इमीडिएट आपको ना वो ब्रश करने के बाद ऐसा फीलिंग आएगा कि आपके गम्स टाइट हो गए, यू आर स्मेलिंग सो गुड, यू आर फीलिंग सो फ्रेश फ्रॉम इनसाइड. सो oil pulling is an amazing thing. I am doing my oil pulling thing. Please, you also start. And Rena Essential has the oil pulling blend, जिसमें एक अलग सा blend बनाया है जिसमें coconut oil, sesame oil, mustard oil, neem oil which kills the bacteria, peppermint oil which is जो आपकी breath smell बहुत अच्छा बना देता है, clove oil जो आपके daily basis पे cavity को clean करेगा. So it's all a mixture of the oil blend. If you want to try, you can really buy and try from Rena Essential. It's a oil pulling blend, right? Now we are going to talk about castor oil. So what is castor oil?
Castor oil is a non-volatile fatty oil that is derived from the seeds of the castor beans. और इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं. ये इम्यून इम्प्रूव करता है, ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट करता है, मॉइस्चराइज योर स्किन एंड बूस्ट वूंड हीलिंग. इट कैन हेल्प यू इन इंड्यूस बेटर. और ये बहुत अच्छा लेक्सेटिव है जो कॉन्स्टिपेशन रिलीव करता है. आई थिंक आप सभी ने सुना होगा कि पीपल डू टेक castor oil in the night, and I will also suggest, and I have been taking and suggesting my patient, people who are constipated, acidity and other gut issues जिसको भी है, they can do this practice. अगर जिसको बहुत ज्यादा constipation है, heavy constipation, then they should continue for a little long. But otherwise, basic detox cleaning के लिए you can start this 7 days practice every day before sleeping in the night. 1 tablespoon of castor oil you have to take with the warm water, or you can take up with your कोई भी green tea या ginger peppermint tea या कोई भी tea के साथ आप ये castor oil ले सकते हैं. And in the morning you will feel so fresh. And initially start with the 7 days. If it is too much, then you have to continue with this if you're so much constipated. Now next we are going to talk about essential oils. Now what are essential oils? Aromatherapy. आपको लगता like many people who all are aware about the essential oils, I would like to know कि essential oils क्या होते हैं, career oils क्या होते हैं. Can you put message in the chat box? Are you aware about the essential oils, aromatherapy, uske benefits? Yes, okay. Okay. No, many people are not aware also. Okay, right. So, and so who are saying yes? So do you use essential? Yes. So who all are typing yes? So you must be using essential oils also in your daily practice or something. Yes, some like tea tree. Yes, tea tree is essential oil. Clove is essential oil. Yes. So there are बहुत से लोगों को confusion है. So I want to clear that. So oils, maybe there are essential oils and there are lemongrass oil. You're right. Yes. There are career oils. Career oils are like coconut oil, almond oil, vitamin E oil, grapeseed oil, jojoba oil, argan oil. These are our career oil. ये career oils known as volatile oils functions very differently from this oils. Essential oils में क्या होता है, वो direct plant से होता है और वो evaporate, अगर हमने फेस पे लगाया तो वो evaporate हो जाएगा और उसका आधा से ज्यादा हमारा स्किन ऑब्जर्व कर लेगी और हमारे सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन में और ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा वो एसेंशियल ऑयल्स. बट करेर ऑयल विच इज कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल, ये सब करेर ऑयल, ये लगाने के बाद आपने भी फील किया होगा कि 10 मिनट तक चिपचिपा रहेगा और हमारी स्किन में ऊपर ही रहेगा. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेंशियल ऑयल्स like lavender, rosemary, tea tree, frankincense, lemon, and other things. And career oils are this. Now let's go to next slide. Essential oils के बारे में अब और हम कल जानेंगे. Now today we are going to know more about which is a good healthy tea. रोज हमको जो लेना चाहिए एक herbal tea is ginger and peppermint, which is very good for your gut. If you have any headache, if you feel constipated, if like any kind of acidity, so you can really try ginger and peppermint tea, which is very easily available. You can make it home. So meet your new favorite tea pairing, peppermint and ginger, which kills 2 birds with 1 drink. Each natural ingredient is great for its own reason, but put them together and you have got to yourself de-bloating and detoxifying combination. This tea is very good for gut, for bloating issues. Peppermint is known to support digestive by relaxing and GI tract and relieving constipation. And ginger can help in your inflammation, your pain. It's very good. So do try this tea
tea, it's very healthy. Now we are going to go to next slide, which is रात को सोने से पहले you should do warm food soak with the bath salts. बाथ सॉल्ट के बारे में हम बात जरूर करेंगे, पर कमिंग इन टू 2-3 दिन के बाद करेंगे, बिकॉज वी हैव दिस 7 days टाइम. पर आई वांट टू टेल यू, आपके पास घर पे कोकोनट ऑयल तो होगा ही. आज सोने के पहले आप कैस्टर ऑयल लेंगे, आप सोने के पहले कोकोनट ऑयल लेंगे हाथ में और अपना फुट का मसाज करेंगे. यू नो, रिफ्लेक्सोलॉजी, हमारे फुट में, हमारी बॉडी का हर पॉइंट हमारे फुट में, यू नो, दैट्स अ रिमोट कंट्रोल ऑफ आवर बॉडी, यू से. तो थ्रू रिफ्लेक्सोलॉजी, थ्रू कांसावती का फुट मसाज, यू कैन रियली डू दिस. आपको बहुत रिलीफ मिलेगा. मसाज करते ही आप अपने पैर वापस से वार्म वाटर में सोक कीजिए विद द बाथ सॉल्ट फॉर 10 minutes एंड यू आर रेडी टू गो टू बेड, साउंड स्लीप. वेरी नाइस. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सॉल्यूशंस. सॉल्यूशंस फॉर हैप्पी गट. सो हमको रात को 1 tablespoon ऑफ कैस्टर ऑयल वार्म वाटर के साथ लेना है बिफोर स्लीपिंग. And you have to do foot massage and soak your feet in the water, salt water. Then tomorrow morning you have to do oil pulling. Then after oil pulling you have to drink 3 to 4 glasses of warm water. After 30 minutes of drinking water, you can take any fresh vegetable juice or any herbal tea like ginger peppermint or any tea you can try. Breakfast is a colorful fruit platter, rainbow. हमारा माइंड इज वेरी स्मार्ट. वो जो कलरफुल प्लेट दिखता है ना, उसको मजा आ जाता है, वो खुश हो जाता है, वो कलरफुल फ्रूट सुबह सुबह. और either you can take a sprout chart also. Then coconut water. For lunch you can take roti, rice with compulsory green leafy vegetable. After 1 hour of lunch you should take buttermilk. Evening snacks, if you are hungry, then you can take nuts, dry fruits, seeds, which are soaked for 3 to 4 hours. And then take, or with herbal tea, you can take. Dinner, you can take vegetable soup, salad, vegetable dalia, जिसमें दलिया का quantity कम हो, पर more of vegetables. And then, or you can or अगर आपको डिनर में ज्यादा भूख नहीं है, you're so full, you're not hungry, so then you can take a fruit platter also. And sleep on left side of the body. Surya Nadi is activated and it helps in digestion. So this is the solution for the day for happy gut and happy life. And all your questions, please mail us. We are going to answer all these questions tomorrow for sure. And over to Anjali now. Okay, so one more thing I wanted to say कि हम आपको solutions जो बता रहे हैं, जो डॉक्टर रीना जैन आपको बता रहे हैं, वो एक हमने ब्रॉड कैटेगरी में आपको क्या खाना चाहिए, क्या हेल्दी है, क्या रूटीन होना चाहिए मॉर्निंग टिल इवनिंग, वो पूरा डिटेल हम आपको बता रहे हैं. मगर अगर आपको स्पेसिफिक चाहिए कि मतलब मुझे ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए, दोपहर को क्या खाना चाहिए, स्पेसिफिक विद अ डाइट चार्ट पूरा 1 वीक का, तो आप हमें मेल कर सकते हो और वो एक मिनिमम चार्जेस में है, तो वो हम आपको पूरा 1 वीक का डिटेल आपको दे देंगे, फिर आप फॉलो कर सकते हो. आप अपना डिटेल भी हमें बता सकते हो कि व्हाट एग्जैक्टली योर मतलब आपका कंडीशन है या जो भी कुछ है, उसके बेसिस में आपके बॉडी के टाइप का हम आपको वो डाइट प्लान 1 वीक का आपको दे देंगे. ओके, so now let us start with our future thing. So welcome everybody to Happy Gut Happy Life. और बहुत ही अमेजिंग सेशन है जहाँ पे हमने लाइफ में सुना, मगर हमने कभी इतने डिटेल में ग्रास रूट लेवल में हमने कनेक्ट नहीं किया. तो आज हम अपनी गट को कनेक्ट करने जा रहे हैं और हम और गहराई में समझेंगे कि ये कंडीशन अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, और हम कितना भी कोशिश करें, कैसे भी करें, फिर भी वो सॉल्व नहीं हो रहा है, और कैसे नेचुरली हम क्योर कर सकते हैं.
तो डॉक्टर रीना जी ने हमें बताया कि डाइट आप क्या फॉलो कर सकते हो, कैसे आप ऑयल पुलिंग कर सकते हो, कैसे एट द एंड ऑफ द डे आपके बॉडी के जो प्रेशर पॉइंट्स है, आपके जो रूट में रिफ्लेक्सोलॉजी में आप कासा से जब आप एवरीडे वो ऑयल से आप उसको रब करोगे अपने प्रेशर पॉइंट्स में, तो क्या होगा कि आपके बॉडी में खाने का जो भी डिटॉक्स है वो पूरी तरह से निकल के आपकी कटोरी वो काली हो जाएगी। आप इसको एक्सपीरियंस करना करके, तो वो कासा नहीं तो तांबा, ईदर ऑफ द वन आप यूज कर सकते हो एवरी डे इन द नाइट। सपोजिंग गर्मी का टाइम है और आप वो तेल से आप रब कर रहे हो, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका फूड थोड़ा गर्म होने लगेगा, राइट? तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा पानी लो, उसकी थपकी मारो और वो कांसे की कटोरी से आप पाव को कर सकते हो, और ये एवरीडे करना है। तो बेसिकली क्या होगा, आपके हर एक पॉइंट जो ऑर्गन्स के है सब मसाज हो रहे हैं, और वो एक तरह से उस पे एनर्जी दे रहा है टू एक्टिवेट आपका पूरा सिस्टम, मतलब वो उसको एक तरह से एनर्जी दे रहा है। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड कि हमारा वेलबींग का सर्कल, हमने कई बार हम खाली या तो डाइट पे फॉलो करते हैं या हम अदर चीजों में देखते हैं, हम पूरा होलिस्टिक पूरे एक अम्ब्रेला को अंडरस्टैंड करते हुए नहीं करते। तो इसलिए हमने, बिकॉज ये एक बेसिक चीज है जो हर इंसान का वेलबींग ही इस पे डिपेंड होता है, तो हमने ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड एनवायरमेंटल वेलबींग के नजरिया से हमने ये प्रस्तुत करने की कोशिश करी है। तो ये मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताऊंगी। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको क्वेश्चन पूछूंगी कि फॉर एग्जाम्पल आप रह रहे हो और आपके दो नेबर है, आपके राइट साइड का जो नेबर है वो बहुत पीस, हार्मोनी, बहुत अच्छे से ग्रेटफुल है, कंपैशनेट है, बहुत अच्छा इंसान है आपके जो राइट साइड के नेबर है। और जो आपके लेफ्ट साइड के नेबर है वो हमेशा ही झगड़ते रहते हैं, हमेशा ही क्रिप करते रहते हैं, हमेशा ही क्रिटिसाइज करते हैं। तो आपको कौन सा नेबर पसंद है? आपको राइट वाला पसंद है या लेफ्ट वाला? राइट, तो आप मुझे प्लीज चैट पे लिख के बता सकते हो कि आपको राइट वाला नेबर पसंद आएगा या लेफ्ट वाला पसंद आएगा। तो किसी ने क्वेश्चन पूछा है कौन सा ऑयल, तो इट इज कोकोनट कोल्ड कंप्रेस नेचुरल ऑयल। ओके, तो लेफ्ट वाला, राइट वाला, ओके, लेफ्ट वाला इज सॉरी, द राइट वाला इज आपका जो अच्छा नेबर है, आपसे प्यार से हार्मोनी में रहता है, और लेफ्ट वाला है हमेशा झगड़ता है आपके साथ, हमेशा, एवरी टाइम। ओके, so that is what is the scenario. Okay, which one would you like, the right or the left? तो सबने right लिखा है, right? So same is what we are doing with our body. हम सेम चीज कर रहे हैं अपने बॉडी के साथ। हम क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी के साथ हमने खाना जो खाया, हमने डिसहार्मोनी वाला हमने खाना खाया विच वॉज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी, खा तो हमने लिया, उसके बाद में जब डाइजेशन नहीं हुई तो हम वी ourselves from our mind is telling our body, अरे what is this, I always get bloated, I get this acidity, I'm getting this horrible feeling. So even our thought starts vibrating the same manner, और हमारे जो बॉडी के सेल्स है वो ही सिग्नल पे ही पास ऑन कर रहा है आपके अलग अलग सेल में। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज कि अगर कोई आपको फ्री $1 मिलियन का आपको बहुत गंदा घर दे फ्री में, और बोले कि आपको इसी में रहना है, आपको ऐसे ही रहना है, बट वो $1 मिलियन का घर है और वो फ्री है, तो would you choose to go and stay in a house like this? No. तो सबका आंसर नो आ रहा है, राइट? कितना भी इमेजिन, इतना एक्सपेंसिव है बहुत। अमित इज सेइंग यस, आई एम श्योर यू आर नॉट सेइंग यस फॉर एक्चुअली ट्राइंग आउट। तो अगर staying there will clean the house, throw everything out. No, you can't clean, you have to stay in that kind of house only. So you can't, आप नहीं रह सकते हो। आओ, तो हमने अपने बॉडी को वो ही कूड़ादान किया हुआ है, उसमें हर चीज हम डाल रहे। तो इमेजिन आप ऐसे घर में रहना पसंद नहीं करोगे, तो हम मगर अपनी बॉडी में हमने वो सिचुएशन करी हुई है, तो हम जब तक उसको इंटरनल ग्रास रूट लेवल उसको
अंदर तक जाके हम उसको क्लीन नहीं करेंगे तो ग्रास रूट लेवल वो क्लीन हो ही नहीं सकता करके। तो जैसे डॉक्टर रीना जी ने भी बताया कि हमारे जो गट हेल्थ है, जो जैसा अन्न वैसा मन, जैसे हम खा रहे वही हमारे बॉडी में, क्यों ये कहावत ही क्यों है, तो जैसे आप खाना खा रहे हो उससे जब जैसी ऊर्जा निकल रही है, मतलब अलग अलग टाइप का खाना है, राइट, मतलब एक तामसिक है, राजसिक है और सत्व है। तो जितना आप तामसिक मतलब ज्यादा मसाले वाले पैक्ड फूड ऐसे वाले खाना जब आप खाते हो तो उससे जो गैस इमिट होती है या उससे जो वो रिलीज होता है आपके बॉडी में, वो आपके ब्लड स्ट्रीम्स में एब्जॉर्ब करके वो 1 to 1 आपके माइंड में वो जा रहा है और उसकी वजह से आपको हेडेक, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, माइग्रेन, ये सब चीजें। अब आपने आपने समझा कि मुझे माइग्रेन हो रहा है, मगर माइग्रेन हो क्या रहा है, वो तो गट से हो रहा है, मतलब एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर गट। तो अगर आपका गट हेल्दी है तो आपने ग्रास रूट में चीज को ठीक कर ली, फिर तो वो ऑटोमेटिकली बाकी चीजों की जो साइड इफेक्ट है वो ऑटो क्लीन हो गए। ओके, सो गोइंग फॉरवर्ड, तो हमारा जैसे मैं थोड़ा साइंस भी मैंने सोचा बता दूं कि मतलब हम जब खा रहे हैं वही सर्कुलेशन हो रहा है, वही हमारे गट ब्रेन से कम्युनिकेशन हो रहा है और वही पूरे नर्वस सिस्टम में रोटेट हो रहा है, वही चीज गोल गोल घूमे जा रही है। तो हम वो डिसअलाइनमेंट हमारे बॉडी में हमने क्रिएट किया है बाय द रॉन्ग फूड दैट वी आर ईटिंग, और हम उसमें जब करेक्शन करेंगे हम होलिस्टिक, मतलब हमें क्या सोचना भी है, कई बार हमने सोचने का तरीका ही हमारा गलत है, तो हमें वो भी उसमें इम्प्रूवमेंट लानी है। ओके, तो लेट अस मेजर, मैं चाहती हूँ आप सब अपने आप को मेजर करो और अपने आप को अंडरस्टैंड करो कि आपका क्या लेवल है अभी, सो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि व्हाट इज माय करंट स्टेटस, मैं कौन से स्टेज में हूँ, मतलब मेरा कौन सा स्टेज ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन चाहिए मेरे बॉडी के अंदर, एंड आप अपने इम्यूनिटी को पैरामीटर में एनालाइज कर सकते हो। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आप फ्रीक्वेंटली चेंज ऑफ सीजन यू फॉल सिक, दैट इज माय क्वेश्चन नंबर 1। क्या आपका स्लीप प्रॉब्लम है, आप आराम से नहीं सो पाते हो। थर्ड क्वेश्चन है कि आप क्या काम जब जाते हो एक्साइटमेंट से जाते हो। थर्ड क्वेश्चन इज, क्या आपको डाइजेशन, गैस, कॉन्स्टिपेशन या एसिडिटी होती है। डू यू हैव एनी डिजीज लाइक डायबिटीज या हार्ट रिलेटेड। डू यू फील लॉस ऑफ एनर्जी, एंड ऑफ द डे होते होते आप बहुत थक जाते हो, टायर्ड महसूस होते हो। अगर ये सब के आंसर अगर हाँ है तो कहीं ना कहीं हमारा इम्यूनिटी पावर जो है ना, फुल जो चरण, मतलब बिल्कुल 100% पावर जो है वो 100% पावर में काम नहीं कर रहा है। तो वी नीड टू वर्क, हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे आप कैसे कर सकते हो। ओके, सो अभी मेरा नेक्स्ट है कि हमें समझना है हम कौन से स्टेज में है इन टर्म्स ऑफ हमने कितना गंद हमारे अंदर हमने बॉडी में भरा हुआ है। ओके, सो स्टेप नंबर 1, अपने टॉक्सिसिटी लेवल को आपको चेक करना है। तो सबसे फर्स्ट है एनर्वेशन। ओके, फीलिंग, मतलब आपको जनरली कभी कभी आपको लगता है कि मेरी ठीक नहीं है तबीयत, मैं बीमार हूँ। ओके, फर्स्ट स्टेज में ही आपको बहुत टायर्ड हो जाते हो, आप इजीली आप टायर्ड हो जाते हो। ओके, दैट इज द फर्स्ट लेवल। सेकेंड स्टेज में जब टॉक्सिमिया थोड़ा और इंक्रीज हुआ, उसमें आपका जो वेस्ट है वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट नहीं हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको किसी का सपोर्ट लेना पड़ता है, कुछ चीज खा के उससे आपको क्लियर कर रहे हो आप। ओके, सेकेंड स्टेज में है कि वो जो टॉक्सिविटी हमारे बॉडी के अंदर आई है वो हमारे ब्लड में स्पिल होने लगती है और उसके वजह से ही वो रोटेट करने लगती है, तो आपको एंजाइटी हो गया, स्ट्रेस हो गया, टेंशन हो गया, वो चीजें होने लगती है। ओके, सेकेंड स्टेज में ही आपको फ्रीक्वेंटली जैसे ही क्लाइमेट चेंज होता है तो आपको स्नीजिंग हो जाती है, कोल्ड हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, फीवर हो जाता है। तो ये सारे कंडीशंस ना हमारी बॉडी हमें इंडिकेशन दे रहा होता है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, जब छोटे बच्चे को अटेंशन चाहिए होता है तो वो क्या करता है, वो बोलता है मम्मी मम्मी मुझे देखो। ये सेम चीज है, हमारी बॉडी हमें अटेंशन मांग रही है। तो फीवर जब है तो वो आपको इंडिकेशन दे रही है कि इसमें आपको क्लीन करनी है अपनी बॉडी को, वो एसिडिक बनती जा रही है, आपको अपनी बॉडी को अल्कलाइन करना है। ओके, ये सेकेंड स्टेज है। नाउ थर्ड स्टेज इज इरिटेशन। इरिटेशन मतलब आपकी बॉडी
का जो क्लीनिंग जो है वो नेचुरली नहीं हो रहा और वो बिल्टअप होता जा रहा है। और बिकॉज वो बिल्टअप होता जा रहा है तो आपकी स्किन में वो, क्योंकि उसको तो निकालना है, हमारे बॉडी को तो वो टॉक्सिसिटी निकालनी है, बाहर फेंकनी है, तो वो स्किन में स्पिल होना चालू हो जाएगा। स्किन में आपको इरिटेशन होगी, या आपको एंजाइटी वरी होने लगेगा, या आपको जैसे पिंपल्स हो गया वैसे आपको होने लगेगा, नींद नहीं आएगी, वेट पुट ऑन होना चालू हो जाएगा। ये थर्ड स्टेज है। ओके, आपको बेड ब्रेथ हो जाएगी, आपको आंखों के नीचे काला होने लगेगा, तो ये हैवी इरेगुलर पीरियड्स हो जाएंगे। तो ये सब आपके थर्ड स्टेज में। ओके, ये सब आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने आप को देखना है कि आप कौन से स्टेज में। ओके, फिर उससे आपको क्लैरिटी आएगी कि कितना समय आपको आप करोगे तो जाके वो टॉक्सिक लेवल जो हमारे बॉडी के अंदर जमी है हमें वो क्लीन करना है। ओके, तो ये हमारा थर्ड स्टेज तक हो गया। Now going to the fourth stage. फोर्थ स्टेज क्या है? इन्फ्लेमेशन। जब आपके ऑर्गन्स में वो जो टॉक्सिक है वो वहां पे इन्फ्लेट मतलब सूजन होने लगेगी, एक्यूट पेन होने लगेगा, हल्का हल्का पेन होने लगेगा, और कोई ना कोई आपको इन्फ्लेमेशन डिजीज होने लगेगी जिसका एंडिंग आइटिस से होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थराइटिस, कॉर्टिलाइटिस, गैस्ट्राइटिस, ब्रोंकाइटिस, थायराइडिस, डायबिटीज, मतलब ऐसी बीमारी आपके बॉडी में होने लगेगी जो इन्फ्लेमेशन मतलब वो नॉर्मल प्रोसेस में नहीं कर रहा है, उसमें इतनी टॉक्सिक लेवल हो गई है और उसके वजह से ये वाली डिजीज जो है मैनिफेस्ट हो रहा है। और मैनिफेस्ट होने के बाद क्या हो जाता है, जब हमें बीमारी होती है तो हम भी कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हैं, अरे मुझे ये हो गया, मैं दवाई खाऊंगी, ये ठीक नहीं हो रहा, ये कैसा है। तो हमारा रिलेशन अपने बॉडी के साथ ही एक और हम डिसहार्मोनी पे चले जाते हैं। ओके, तो हम आगे आएंगे कि हमें हार्मोनी कैसे करना है। तो फिफ्थ स्टेज जो है अल्सरेशन होने लगता है। फिफ्थ स्टेज में मतलब वो बिकॉज वो टॉक्सिक्स इकट्ठे हो गए, उसको कहीं बाहर निकलने की उसको निकलना है मगर कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो हमारी बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है, वो क्या करती है उसको कहीं बाहर फेंकने की या पूरे बॉडी में स्प्रेड होने के बजाय वो एक जगह जो कि वीक स्पॉट है आपके बॉडी का उसमें वहां पे जाके इकट्ठा होने लगती, क्लॉग होने लगती है। तो ये आपका फिफ्थ स्टेज है। तो हम जब वो अल्सर होता है तो हम उसमें टेंशन आ जाता है कि ये कोई भी स्टेज से आप रिट्राइव कर सकते हो, रिवाइव कर सकते हो जस्ट बाय डाइट, बाय जो हम तरीका बता रहे हैं नेचुरल, उसमें आपको अपना मेडिसिन तो लेना ही है मगर धीरे धीरे ऑटो करेक्शन करते हुए आगे कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। सिक्स स्टेज होता है इंड्यूरेशन, जहाँ पे आपकी जो वहां की पर्टिकुलर टिश्यू, अब जैसे मैंने बताया एक जगह में इकट्ठा हो गया तो वहां का वो टिश्यू जो है वो बिकॉज वो इकट्ठा हो गया तो वो वहां की जो टिश्यू है उसको डेड करने लगता है, और वो डेड करने की वजह से वहां का वो एरिया थिक होने लगता है, कड़क होने लगता है। और वो कड़क होने के बाद वो क्या होता है कि वो वहां पे जैसे एक लंप जैसा है वो वैसे होने लगता है। तो ट्यूमर हो गया, फिब्रॉइड्स हो गए, सिस्ट हो गए, पेन आपको महसूस होने लगेगा। ये सिक्स स्टेज है। सेवन स्टेज में वो एक अलग चरण पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो फंगेशन या कैंसर के रूप में आ जाता है, जहाँ पे अभी आपकी बॉडी को सेव करना है ताकि वो दूसरी जगह नहीं जाए। तो वो क्या कर रहा है, क्योंकि आपकी सेल्स तो अलाइव है राइट, उसको सेल्स खा रही है, तो वो कैंसर वो वहीं पे दूसरे सेल्स को खाने लगता है जो कि हेल्दी सेल्स है, और इसलिए फिर वो वैसे बढ़ता बढ़ता जाता है करके। तो आपको समझना है आप कौन से स्टेज में हो और आपको कैसे कितने लेवल तक आपको वो डिटॉक्सिफाई आपको करना पड़ेगा। ओके, सो नाउ लेट अस गोइंग टुवर्ड्स हमारा बेसिकली हमारा माइंड प्रोग्रामिंग, हमारा मेंटल हेल्थ और हमारा इमोशनल एंड स्पिरिचुअल अलाइनमेंट में आप क्या चाहते हो, व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट। आपको लिखना है चैट में, डू यू वांट गुड हेल्थ, अब व्हाट यू एक्चुअली वांट। सो आप गुड हेल्थ चाहते हो या आप जो सिचुएशन हो उसी में रहना चाहते हो, तो आई वॉन्ट यू टू टेल मी। मतलब कई बार हम सेंटेंसेस क्या बोलते हैं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, तो हमारा ध्यान क्या है, जो चीजें नहीं चाहिए वहां पे हमने ध्यान लगाया है और वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है हमारे लाइफ में। हमें ध्यान वहां लगाना है हेल्दी लाइफ में, गुड हेल्थ में, अच्छी
अच्छी चीजों में. ओके, so everybody is writing healthy life, good life. So yes, it is very important. Happy, Good peaceful health, mind. happy, peaceful mind and healthy mind, happy and healthy life, healthy mind and body, no illness. That's great. So शैली अगेन नो इलनेस नहीं बोला है, हमें जो नहीं चाहिए उधर ध्यान नहीं देना है, हमें जो चाहिए उस पे ही ध्यान देना है. और जब जो चीज आपकी लाइफ में चाहिए उसी पे कॉन्स्टेंटली आप फोकस करोगे. तो ये एक सिंपल फॉर्मूला है, जो चीज पे आप ध्यान दोगे वो ही ग्रो करेगा. तो हम उस पे फोकस करके हम आगे बढ़ेंगे. ओके, सो नाउ लेट अस गो फॉरवर्ड. जैसे सबने लिखा कि हम सब हेल्दी माइंड चाहते हैं. तो सबसे पहला सोल्यूशन टुवर्ड्स दी एक्यूप्रेशर, जैसे हमने रिफ्लेक्सोलॉजी की बात करी कि हर हमारे बॉडी के जो नर्व्स है वो हमारे बॉडी के पाँव में, फुट में है. तो आप कांसा की कटोरी से वर्जिन कोकोनट ऑयल से जब आप रोज कर रहे हो तो टॉक्सिक्स आप उसको रिलीज कर रहे हो, या गुनगुना नमक के पानी में आप डुबा रहे हो तो आपकी जो बॉडी की हैवी, आपके चाहे वो मेंटल या इमोशनल हैवीनेस भी है वो भी पुल कर लेगा टॉक्सिक. ओके, नमक का पानी. नाउ एक्यूप्रेशर बेसिकली है क्या? एक्यूप्रेशर जैसे पाँव में है वैसे ही हमारे बॉडी की सारी ऑर्गन्स, हमारे ईच एंड एवरी हमारे हैंड में वो ऑर्गन्स का डिपिक्शन है, मतलब उसके पॉइंट्स है. तो जब आप वो पॉइंट्स को आप प्रेस करते हो तो बेसिकली आप अगेन एक्टिव कर रहे हो, आप उसको एनर्जी दे रहे हो, वो वाले ऑर्गन में आप एनर्जी पास कर रहे हो ओनली वाया प्रेसिंग. ओके, तो इधर मैंने कॉन्स्टिपेशन के लिए मैंने आपको बताया कि कहाँ पे आप क्या कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है, क्योंकि हमने जो ग्राफ हमने देखा, जो हमें सबने आंसर किया, सब एवरीबडी इज नॉट गोइंग थ्रू कॉन्स्टिपेशन, अलग भी पीपल आर फीलिंग. तो आपको अगर ओवरऑल अपना ओवरऑल वेलबींग के लिए करना है, आप कभी भी कहीं भी बैठे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप घर में फॉर एग्जाम्पल लेटने गए हो, आपको केवल क्या करना है, अगर यू आर नॉट गोइंग थ्रू एनी कॉन्स्टिपेशन नथिंग, आपको एक नॉर्मल चीज करनी है एवरीडे. आपको खाली अपने पूरे हाथ के सबको अच्छी तरह से बैठ के उसको प्रेस करना है. तो आपके प्रेशर पॉइंट्स ऑलरेडी है और इट वोंट टेक मोर देन 10 मिनट्स. 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगता, ये नेचुरल है, इसमें आप कोई डॉक्टर को पे भी नहीं कर रहे हो, सो आप इजीली कर सकते हो. तो आपको अच्छे से अपने सारे पॉइंट्स को प्रेस करना है. ओके, अगर यू आर नॉट गोइंग थ्रू कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी और एनीथिंग, तो हम आगे क्लास में स्पेसिफिक चीज की भी बात करेंगे. तो फिलहाल ओवरऑल के लिए मैं बोल रही हूँ, आप पूरा कर सकते हो. ओके, सो नाउ गोइंग टू एक्यूप्रेशर का क्लैरिटी के बाद, हमारे पाँव में भी जैसे मैंने बताया एक हमारा लिवर डिटॉक्स का एक पॉइंट है. तो हमारे फुट में ये वाला जो पॉइंट होता है उसको जब आप प्रेस करोगे, अच्छे से प्रेस करोगे, तो वो आपका लिवर को पूरी तरह से डिटॉक्स करेगा और वो आपको हेल्प करेगा. ओके, तो ये वाला पॉइंट आप कर सकते हो. नाउ गोइंग टूवर्ड्स हमारा नेक्स्ट सोल्यूशन, वो है हमारा मुद्रा. हमारे जो हाथ है, हमारी जो ये बॉडी है, हमारा यूनिवर्स ही 5 तत्वों का बना है, हमारी बॉडी यही 5 तत्वों की बनी है. तो हमारी हर एक बॉडी में अलग अलग चीज की हमारे एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करती है. तो ये है फायर, ये है एयर एलिमेंट, ये है स्पेस, ये है अर्थ और ये है वाटर. तो आप देख रहे हो कभी भी आप रिंग पहनाते हो एंगेजमेंट का, तो अर्थ एलिमेंट, हम धरती में है, धरती में ही हम शादी कर रहे हैं, तो हम अर्थ एलिमेंट पे ही हम रिंग पहनाते हैं. कभी आपने ऑब्जर्व किया कि आप स्कूल में जब आपको बाथरूम जाना होता था तो आप ऐसे करते थे, राइट? तो मतलब वो वाटर है, तो आप बेसिकली वो कर रहे थे मगर आपको उसका मीनिंग नहीं पता था. सो नो वरीज. तो हम जब ज्यादा सोचते हैं तो वो हमारा एयर एलिमेंट हद से ज्यादा एक्टिव होता है. तो क्योंकि जो हमारा सोच है, थॉट है, वो एक एयर के जैसे है, लाइट है, उसका कोई वजन नहीं है. मगर वो हम जब एक्सेस में सोचते हैं तो वो हमारे ब्लड में वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मतलब हमारी हर थॉट की जो वाइब्रेशन है हमारे ब्लड के अंदर आ जाती है और उसकी वजह से हमारा ब्लड जो है वो हैवी होते हुए स्लो सब जगह जो नॉर्मल स्पीड से चलना चाहिए डाइजेशन के लिए वो नहीं हो पाता है.
तो आज मैं आपको एक नॉर्मल मुद्रा आपको बता रही हूँ जिसको बोलते हैं प्राण मुद्रा। ये आपकी इम्यूनिटी पावर को हेल्प करता है और आपको एनर्जाइज्ड फील कराएगा। सिंपल है, आपके बॉडी में अगर ज्यादा ऑक्सीजन आएगा तो हमारे ईच सेल्स में क्या है, ऑक्सीजन एंड वाटर। तो अगर आपने ऑक्सीजन कंटेंट अपने बॉडी में बढ़ा दिया और पानी आपने चार्ज्ड पानी पिया, तो उसी से आपकी हीलिंग, उसी से आपका इम्यूनिटी आपका बूस्ट होने वाला है। तो आपको जो रिड्यूस, ये आपके ब्लड वेसल्स में कुछ ब्लॉकेजेस है उसको भी रिमूव करता है। तो आज हम जब ध्यान में बैठेंगे तो हम अपने जो छोटी उंगली और जो मतलब वाटर एंड अर्थ, वो उसको फायर से हम कनेक्ट करेंगे। अच्छा, मुद्रा में आप देखना हर चीज अंगूठे से जुड़ी होती है। क्यों? क्योंकि ये फायर एलिमेंट है। हम जो अलाइव है, हमारा जो बॉडी चल रहा है, जो हम एक्टिव है, तो हमारे अंदर वो फायर एलिमेंट है जिसकी वजह से हम चले जा रहे हैं, राइट। अगर फायर नहीं होगा तो हम बिल्कुल ठंडे पड़ जाएंगे, तो कोई अलाइव ही नहीं होएगा। तो हर चीज को हम थंब से कनेक्ट करते हैं। और जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हो तो थंब हमारा जो है वो परमात्मा से, हमारे कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्टेड होता है। और हमारी ये उंगली जो है बहुत इंटरफेयरिंग सेल्फ होती है, हर चीज को उंगली दिखाते हैं, ये ईगो आ जाता है हमारा। तो जब आप ईगो को अपने परम तत्व से जुड़ते हो तो आप वो ध्यान मुद्रा मेडिटेशन में करते हो बेसिकली, मतलब ईगो को आप समर्पित करते हुए आगे बढ़ते हो। तो आज हम अगर प्राण मुद्रा कर रहे हैं, प्राण मुद्रा करेंगे और मैं आपको आगे बताऊंगी क्या करेंगे। तो आज हमारा मेडिटेशन क्यों इम्पोर्टेंट है और बहुत जन एक्सप्लोर नहीं करते हैं, मगर मेडिटेशन से आपकी कैसी भी बीमारी है, कैसी भी चीज है, आप अमेजिंगली उससे हील कर सकते हो। अब होता क्या है मेडिटेशन से, कि आप अपने सब कॉन्शियस को प्रोग्राम कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो उसको अच्छी ऊर्जा, ताकि आप अपनी बॉडी में अच्छी ऊर्जा पास करते जाओ जो आपको हेल्प कर रहा है, ताकि वो आपको हील कर पाए। क्योंकि हमारा जो कम्युनिकेशन है हमारे बॉडी के साथ, वही हमारा डिसअलाइनमेंट है। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया या आपको एसिडिटी होगी, ब्लोटिंग होगी, तो आप हमेशा अपने आप को, बॉडी को बोलते रहते क्या है, ये है, कभी होता ही नहीं है ठीक, मैं कुछ भी कर लूं, मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है, कुछ भी कर लो। तो हमने क्या किया है, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में छोटा बच्चा है, वो बहुत मिस्चीवियस है, बहुत बहुत तंग करता है आपको, तो आप उसको डांटोगे, मगर डांटने के बाद आप क्या करोगे, उसको पुचकारोगे ना, नहीं बेटा इसको ऐसे नहीं करते, आप समझाते हो, राइट। तो सेम हमें अपने गट के साथ करना है, उसको बहुत प्यार से, एक बहुत अपने प्योर इमोशंस के साथ उसको कांटेक्ट करना है, और उसको प्यार से अपनी एक माँ जिसे अपने बच्चे के साथ कनेक्ट होती है ना, हमारा आप देखो बचपन से लेके अभी तक हमारा डाइजेशन चले ही जा रहा है, हमने कभी उसको थैंक यू ही नहीं बोला, हमने कभी उसके साथ कनेक्शन ही नहीं बनाई, हमने कभी उसके लिए ग्रेटफुल ही नहीं हुए करके। तो आज हम बेसिकली गाइडेड मेडिटेशन में हम कैसे करेंगे, मैं आपको बोलती जाऊंगी और आपको केवल वो फॉलो करना है। ओके, आपको खाली मैं विजुअलाइजेशन भी बताऊंगी आपको क्या विजुअलाइजेशन करना है। तो हम मुद्रा करके बैठेंगे और ब्रेथ वर्क पे हम ध्यान देंगे, और रिलैक्सेशन करते हुए हम पहले जो हमारी ये अनवांटेड ऊर्जा है जो हमने क्रिएट करी है, सेल्फ क्रिएट की है, पहले उसको हम रिलीज करेंगे, और रिलीज करते हुए फिर हम उसमें अच्छी ऊर्जा हम भरेंगे। ओके, सो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप जहां भी हो आप आराम से कंफर्टेबली बैठ जाओ। आपको आराम से अपने आईज क्लोज करने हैं और मैं पीछे म्यूजिक लगा रही हूँ, तो आप आराम से बैठ सकते हो। ये मेडिटेशन ज्यादा लंबा नहीं है, स्पेशली जो पहली बार करते हैं उनको थोड़ा डिफिकल्ट, वो सोचते अरे मेडिटेशन हो गया, अभी मैं तो 2 मिनट भी नहीं कर सकती हूँ, मगर ये मेडिटेशन आप कर पाओगे, आपको बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी पीछे आपको क्या क्या फॉलो करना है, क्या क्या आपको करना है। ओके, तो गोइंग फॉरवर्ड, पीछे में म्यूजिक लगा रही हूँ और आपको आराम से बैठ जाना है और आराम से आपको मेडिटेशन करना है। ओके, तो जस्ट स्टार्टिंग द म्यूजिक। तो
आईज क्लोज करते हुए, हैंड क्रॉस करते हुए अपनी लैप पे आपको अपना हाथ रख देना है। आप अगर बेड में बैठे हो तो बेड में भी कंफर्टेबली आप पीछे का खाली बैकबोन स्ट्रेट रखना है, बस दैट इज इट। ओके, तो हम अभी चल रहे हैं अपने मेडिटेशन पर। अच्छी गहरी श्वास, इनहेल और एक्सहेल। अच्छी गहरी श्वास, इनहेल और एक्सहेल। अच्छी गहरी श्वास, इनहेल एंड एक्सहेल। अभी अपना पूरा ध्यान ऑन योर ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड अभी विजुअलाइज आप अपना आईज आपने अपनी नोज में रख लिया है और आप पूरी तरह से अपने अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई ईच एंड एवरी ब्रेथ को बहुत ध्यान से देख रहे हो। इनहेल एंड एक्सहेल। अभी जस्ट रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर फेस, पूरी तरह रिलैक्स। अपनी पूरी बॉडी को पूरी तरह छोड़ दो, बहुत ही रिलैक्स्ड। अच्छी गहरी श्वास, आपकी अपर बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। आपकी लोअर बॉडी पूरी तरह रिलैक्स, रिलैक्स्ड और रिलैक्स। अच्छी तरह से अपनी बॉडी को ढीला छोड़ दो, बहुत प्यार से, बहुत आराम से। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल रहे हो कि हे सबकॉन्शियस माइंड, प्लीज हेल्प मी। मैं अभी थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करने जा रहा हूँ। नाइस डीप ब्रेथ। अभी हम अपने अंदर से कोई भी हमारा रॉन्ग डायलॉग हमारे बॉडी के साथ हम पूरी तरह से वो रिलीज करने जा रहे हैं। अच्छी गहरी श्वास लेते हुए आप एक्सेल के साथ रिलीज करने जा रहे हो। हर एक्सेलेशन के साथ आप पूरी तरह से अनवांटेड डायलॉग आप रिलीज करने जा रहे हो। अच्छी गहरी श्वास, और मैं जो भी ऐसे शब्द अपने बॉडी के लिए जो भी मैंने बोले हैं, जाने या अनजाने, मैं पूरी तरह से रिलीज, रिलीज एंड रिलीज। अच्छी गहरी श्वास लेते हुए अपने बॉडी में जो भी डिजीज है तो पूरी तरह से रिलीज, रिलीज एंड रिलीज। विजुअलाइज आपकी बॉडी से बहुत दूर
वो डिजीज आपके बॉडी से निकल के बहुत दूर जा रहा है। नाउ अच्छी गहरी श्वास लेते हुए एक्सेल करते समय अपने बॉडी में कोई भी पेन है तो पूरी तरह रिलीज रिलीज एंड रिलीज, पूरी तरह बहुत दूर आप उसे जाने दें। अच्छी गहरी श्वास लेते हुए अपने बॉडी में कोई भी एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस पूरी तरह एक्सेलेशन के साथ आप रिलीज रिलीज और रिलीज कर रहे हो। विजुअलाइज आपके बॉडी से बहुत दूर ये पूरी डिजीज आपके बॉडी को छोड़ के बहुत दूर जा रही है, एक पूरा समंदर में बहुत दूर जा रहा है। अच्छी गहरी श्वास और आपके बॉडी में कोई भी इमोशनल हैवीनेस, तो एंगर, स्ट्रेस, हेट, जेलसी पूरी तरह से आप रिलीज रिलीज और रिलीज कर रहे हो। हर एक ये स्ट्रेस अपनी बॉडी से पूरी तरह आप इसे बहुत दूर जाने दे रहे हो। विजुअलाइज ये पूरा हैवीनेस आपके बॉडी के साथ से निकल के बहुत दूर जा रहा है, एक समंदर में पूरी तरह पहुंच गया है। अभी आप अपनी गट के साथ एक रिश्ता बनाने जा रहे हो। आप अपने गट को बोल रहे हो, आई एम सॉरी, मुझे बहुत माफ करना, मैंने कभी आपके प्रति ध्यान नहीं दिया। I never brought any intention towards you. I asked for forgiveness. I am sorry for not looking after you. तहे दिल से अपने गट से माफी मांग रहे हो आप। महसूस करो आप ये पूरी तरह से एक माफी की भावना आप महसूस कर रहे हो। महसूस करो आपका पूरा गट बहुत खुशी से आपको थैंक यू और थैंक यू बोल रहा है। आपका गट एक बच्चे की तरह आपको बोल रहा है, मैं एक बच्चे की तरह आपका अटेंशन मांग रहा था। आज आपने इसका एहसास किया है, मैं आपके लिए बहुत धन्यवाद हूँ। पूरे तहे दिल से अपने गट को आपको पूरी तरह से सॉरी और बहुत प्रेम भाव से आप पूरी तरह से लव शेयर कर रहे हो। यू आर शेयरिंग ऑल द लव विद योर गट, द कनेक्शन which you had lost with your gut, आप पूरी तरह से उसको पूरी एक ये प्यार से भरा हुआ प्रेम भरा आप लव एनर्जी अपने बॉडी के साथ आप शेयर कर रहे हो। You're sharing pure love with your gut. Feel it in each and every
every cell of your gut. आप अपने हर एक सेल में, अपना हर एक, आपकी स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सब में आप महसूस कर रहे हो ये बहुत ही लव एनर्जी जो आप इसके साथ शेयर कर रहे हो। आप अपने बॉडी को पूरी प्रेम से, विद ऑल द लव, यू आर सेइंग माय body is very calm. My body is getting better every day, every day. आपकी बॉडी बहुत ही हेल्दी और बहुत ही बैलेंस्ड। I am healthy and in control of my body. अभी आप अपने फुल बॉडी में, सिर से लेके पाँव तक, आप ये बहुत ही अमेजिंग काम एनर्जी महसूस कर पा रहे हो। आपकी फुल बॉडी बहुत हैप्पी एंड रेडिएंट। आप अपने सिर में महसूस कर रहे हो ये पूरी हैप्पी और हेल्दी एनर्जी। आपके अपर बॉडी पूरी ये खुशी का लहर, बहुत ही हैप्पीनेस आप फील कर पा रहे हो। आपका गट बहुत ही हैप्पी, हेल्दी एंड रेडिएंट। आपकी लोअर बॉडी पूरी तरह से हेल्दी, हैप्पी एंड रेडिएंट। आपकी पूरी बॉडी बहुत आपको थैंक्स, पूरी एक लव एनर्जी में बहुत ही काम। अभी आप बिकम कॉन्शियस, आप कहाँ पे बैठे हो। नाउ बिकम अवेयर, आपने कौन से कपड़े पहने। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। अभी आप हाथ रब करके अपनी आईज पर रख सकते हो। तो अभी आई वांट, आप मुझे बताओ, ये बहुत ही सिंपल मेडिटेशन था, आपको कैसा लगा? आपको डिड यू फील कि आप अपना डिजीज, पेन, आपका कनेक्शन विद योर बॉडी, वर यू एबल टू डू? आज हम छोटे लेवल पे हैं, हम रोज मोमेंटम बढ़ाएंगे। तो यू कैन राइट ऑन द चैट आपको कैसा लगा, अंडरस्टैंड कि इसका टेम्पो बढ़ाना है या कम करना है। बहुत अच्छा है आपका बोलने के, बहुत हैप्पी टू टॉक विथ यू, so very happy and I am very grateful to you on this online class. This is the first time I am very feeling very happy, not only the outside, the inner happy is very thankful to you. There is no more words. Thank you, Ma. Thank you very much. I wish you all the best. And you are doing the universal service to the everybody with the free service. So how can we be grateful to you? So thank you very much for this. Dhanyawad. Dhanyawad. So thank you, Anjali. Thank you for this beautiful and peaceful meditation. And I want to ask everyone, have you shown your gut some love today? So today, through knowing about our gut, learning about our gut, and doing meditation,
for our gut, especially for our body and gut health. Have you Yes. shown some love for your gut today? Yes. So it's not too late to start to show love to our gut and change a healthy lifestyle. Happy gut and happy life. Let's start from today. सब लोग साथ में मिलके करते हैं for this 7 days. Now we have the yoga session from Tina. So my question to everybody is, because हमारा थोड़ा आज लंबा हो गया है, तो my question to you is कि should we play right now the yoga ka this so that you can follow, or should we send you the link of the yoga ka yoga for that you can do? So Deepika is saying yes, play. तो हम लोग ठीक है, तो और अदर्स या प्रीसेंट लिंक, तो हम लिंक तो भेजेंगे ही भेजेंगे, बट वी आर प्लेइंग इट. सो इन केस आपको देखना है तो आप देख सकते हो, और आप लिंक भी आप देख लेना है ना. तो लेट मी प्ले इट. एक मिनट, 1 सेकंड. ओके, लिंक इज फाइन. फीलिंग स्लीपी, कोई बात नहीं. जिसको अगर लग रहा है लेट हो गया है, आप प्लीज सो सकते हो, क्योंकि मेडिटेशन के बाद हमने रात को रखा ही इसलिए है ताकि आपका सबकॉन्शियस वही आपको काम करे, प्रोग्राम करे, हील करता रहे आपको रात को सोते समय भी. सो हाउ टू ईट मैंगोज एंड ऑल्सो अवॉइड एकले. So this is somebody's question. तो क्वेश्चन के लिए मैं एक फॉर्म है जो आई विल बी सेंडिंग, आप प्लीज उसमें लिख सकते हो, और बहुत सारे आपके अलग अलग होगा, तो हम उसको कैटेगराइज करके सबको हम आंसर करेंगे. ठीक है, तो लेट मी नाउ प्ले द योगा थिंग, बिकॉज नहीं तो वो ऑलरेडी काफी लेट हो जाएगा करके. तो 1 सेकंड, लेट मी जस्ट प्ले. तो हम ये एवरी डे वी विल बी शेयरिंग द लिंक ऑफ दिस एंटायर रिकॉर्डिंग, और आपको बाद में जब भी करना है आप उसको देख सकते हो. अगर आपको कस्टमाइज्ड आपको वो चाहिए इन टर्म्स ऑफ डाइट, तो आप प्लीज मेल लिख सकते हो. हम पूरे 7 डेज का आपको डिटेल देंगे, बट दैट विल बी चार्जेबल. ज्यादा उसका चार्ज नहीं, बहुत मिनिमम चार्जेस है, बट दैट इज व्हाट यू कैन डू. ओके, तो लेट मी जस्ट स्टार्ट द योगा. So our yoga expert is Tina, who's an amazing yoga. I mean, things which you must have not heard in yoga, that is what she teaches. And हम आगे और प्रोग्राम भी लेके आएंगे जो कि will be based on skin. So, I'm Tina, and I'm so excited to be with you for next 7 days. I'll be your yoga guide for next 7 days. We'll be doing a lot of asanas, which will basically help you to improve your digestion, reduce bloating and gas. And with Reena and Anjali, they'll be guiding you throughout the journey, and I'll be your guide for yoga. So without further ado, let's start. And for today's session, we'll be doing Sukshma Vyayam, in which we'll be taking care of all the joints of our body, and then we'll be doing all the twisting asanas, which will twist your intestine like we squeeze the cloth and it takes out all the dirt from the cloth. उसी तरह से हम अपनी intestine को twist करेंगे, जो हमारी intestine में जो गंदगी भरी हुई है उसको निकालने की कोशिश करेंगे by twisting and by doing other various asanas. So let's start with Sukshma Vyayam. Let's sit down on your mat. Sit straight, back straight. And join your hands. We'll start with Om chanting. Take a deep breath in. Exhale. In. Out. लंबी गहरी सांस नाक से. And exhale through your nose. We'll be starting with 3 Om chanting. 3 Om chanting करेंगे. Inhale. लंबी गहरी सांस नाक से. Inhale.
रोटेशन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. एक्सहेल चिन टू चेस्ट, इनहेल अप. हर एक्सरसाइज को 5 बार करेंगे. सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ देखें, चिन को नीचे ले जाएं. सांस भरते हुए अप, छत की तरफ देखें. एक्सहेल डाउन, इनहेल अप. स्लो मूवमेंट. एक्सहेल डाउन, इनहेल अप. Last one, down and up. Let's do sideways, twisting right and left. Right, left. Slowly, right, left, right, left, right and left. Come in center. And let's rotate completely 3 times clockwise, 3 times anti-clockwise. Go slow. I'm sorry. Shoulder to ear. And rotate chin to chest, shoulder to ear, backwards, chin to chest. Inhale, कंधे को कान से टच करें, पीछे की तरफ जाएं, कंधे से कान को टच करें और ठुड्डी को अपने चेस्ट पे लगाने की कोशिश करें. कम बैक अप एंड रोटेट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. उल्टी दिशा में करेंगे. 1 2 3. आंखों को खोल दें, सेंटर में आके धीरे से. शोल्डर रोटेशन. 1 2 3 4 5. पीछे की तरफ. 1 2 3 4 5. पैरों को सीधा करें और पंजों को अपनी तरफ खींचें, आगे और पीछे. 1 2 3 4 5. घुटनों को 10 बार घुटनों पे हाथ रखें और कोशिश करें कि घुटनों के मसल्स को टाइट करें और अपनी तरफ ऊपर की तरफ खींचें. 10 बार. पुल योर नी कैप्स अप एंड रिलीज, अप एंड रिलीज. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो अपने घुटनों को नीचे की तरफ पुश करना है. एंड रिलीज. पुश योर नीज डाउन एंड रिलीज. 5 6 7 8 9 10. Relax. Let's do butterfly. तितली आसन करेंगे. दोनों पंजों को साथ में लेके आ जाएं. जितना आपसे बनता है उतना ही करें, ज्यादा करने की कोशिश ना करें. और पैरों को, घुटनों को ऊपर नीचे करें 20 बार. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 और 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. रिलैक्स. पैरों को सीधा कर लें और हाथों को अपने पीठ के पीछे ले जाके आंख बंद करके रिलैक्स करें. तीन लंबी गहरी सांसें. सांस लेते वक्त पेट को फुलाएं और सांस छोड़ते वक्त पेट को अंदर खींचें. इनहेल, एक्सपैंड, एक्सहेल, स्क्वीज, एक्सपैंड and squeeze. Relax. Now please bend your knees and stand on the mat. We'll be doing Tadasana. Bring your feet together. अपने दोनों पैरों को साथ में लेके आए. Interlock your fingers and take your hands up. Focus at one point. अपने ध्यान को एक बिंदु पे केंद्रित करें. ध्यान रखें आपका हाथ इंटरलॉक है और ऊपर की तरफ, हथेली ऊपर की तरफ. Focus at one point and lift your heels up. Go on your tippy toes. अपनी एड़ियों को ऊपर उठा लेंगे. कंधों को ऊपर की तरफ खींचे एंड कोशिश करें जितना देर आप होल्ड कर सकते हैं. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Very good. Slowly release your hands. Bring your hands down and heels down. Tadasana. Tadasana आपके पूरे बॉडी के जॉइंट्स के लिए ठीक है, जॉइंट के लिए हेल्पफुल है.
और आपके बैक को स्ट्रेच करता है, आपके एब्डोमिनल एरिया को स्ट्रेच करता है. इट हेल्प्स इन योर डाइजेशन. सो विल बी रिपीटिंग इट वन मोर टाइम. ब्रिंग योर फीट टुगेदर, इंटरलॉक योर फिंगर्स, फोकस एट वन पॉइंट. जितना आपका फोकस ठीक रहेगा उतनी देर आप इस पोज को होल्ड कर सकेंगे. टेक योर हैंड्स अप, inhale and lift your heels up and hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhale and slowly bring your hands down. Relax. ध्यान रखें, जब भी आप ताड़ासन में हैं तो सांस को नॉर्मल चलने दें, उसको रोकने की कोशिश ना करें. इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज. सांस को नाक से ही अंदर लेना है और नाक से ही बाहर छोड़ना है, और जितनी देर आपकी क्षमता है उतनी देर करें. एंड उसके बाद हम ट्विस्टिंग करेंगे. सो दोनों हाथों को सामने लेकर आए. ये आपके डाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. एंड देन टेक योर लेफ्ट हैंड ऑन योर राइट शोल्डर, टेक योर राइट हैंड बैक and try to thumbs up and try to look at your thumb. Make sure your lower body is straight. You're twisting from your back. So I'll just show you. Just look at me. Both the hands in front. Left hand on your right shoulder. Right hand goes back and try to twist, keeping your lower body straight, and try to look at your thumb. Inhale, center. Exhale, left hand on your right shoulder and twist. Look at your thumb. अपने अंगूठे की तरफ देखिए. Inhale, center, and exhale, twist and hold. Center and twist. Inhale, center. Exhale, change. Inhale, center. Exhale, change. कोशिश करें लोअर बॉडी को स्ट्रेट रखें, ऊपर से ट्विस्ट करें. इनहेल, सेंटर, एंड लास्ट टाइम विल होल्ड दिस टाइम. ट्विस्ट एंड होल्ड. 1, नॉर्मल ब्रीदिंग. 2, 3, 4, 5. इनहेल, सेंटर. लास्ट वन. एक्सहेल, ट्विस्ट एंड होल्ड. 5, 4, 3, 2 and 1. Inhale, put the hands in front and relax. Hands behind your back. अपनी हथेली को दूसरे हाथ से पकड़ें और पैरों में नॉर्मल डिस्टेंस, कंफर्टेबल डिस्टेंस. आंख बंद और रिलैक्स करेंगे. Just focus on your breath. 3 deep breathing in and out through your nose. 3 लंबी गहरी सांस आपकी नासिका से. Inhale through your nose. And exhale through your nose. In, out. Keep your face relaxed, keep your body relaxed. In and out. Relax, slowly open your eyes. And now we'll be doing triangle pose, Trikonasana. सो पैरों में कंधे जितना फासला, पंजे सामने की तरफ, जितना आपसे हो सके अपनी क्षमता के हिसाब से करेंगे. अपने सीधे हाथ को, लेफ्ट राइट लेग को राइट डायरेक्शन में ट्विस्ट करेंगे. बॉडी स्ट्रेट. टेक योर हैंड्स अप इन लाइन विथ योर शोल्डर. हाथों को शोल्डर की सीध में लेके आएंगे. अपर बॉडी को स्लाइटली टुवर्ड्स योर राइट पुल करेंगे एंड देन गो डाउन. And take your hand in front of your shin and other hand up and try to look up. Trikonasana. Hold करेंगे. 1, 2, 3. Inhale, come back up and change. Right leg in center. Left leg goes out and pull your body towards your left. Go down and look up. Hold it. 1, keep breathing. 2, 3. Inhale, come back up. Bring your hands down and relax.
त्रिकोणासन बहुत हेल्पफुल है आपके बैक पेन के लिए और आपके गट एरिया के लिए। आप साइड बेंडिंग करते हैं तो इधर से खिंचाव आता है जो कि आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के लिए हेल्पफुल रहता है एंड इट हेल्प्स यू टू रिड्यूस we'll do it one more time. Go towards your right leg facing towards your right. Take your hands up. Pull your upper body towards your right. Slightly go down and look up. Make sure your left leg is straight. Your feet is on the ground. Both the knees straight. Look up. 3, 2, 1. Inhale up and come down. Exhale. Twist and again. The same way, go down towards your left. Look at your right thumb. 3, 2, 1. Inhale up. Bring your hands down and relax. Slowly sit down on your mat. पैरों को सीधा कर लें, आंखों को बंद करें, हाथ पीछे की तरफ, कमर सीधी, 3 लंबी गहरी सांस लेंगे। अर्ध मत्स्येंद्र आसन। जिस तरह से हम कपड़ों को निचोड़ते हैं और सारी गंदगी निकालते हैं, इधर हम ट्विस्टिंग कर रहे हैं अपनी इंटेस्टाइन की और शरीर की सारी गंदगी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी क्षमता के हिसाब से करना है, जितना आप कर सकते हैं उतना ही करें। पैरों को सीधा रखें, राइट लेग को बेंड करें, सीधे पैर को मोड़ें और उसको उठाकर घुटने से बाहर लेके जाएं, लेफ्ट नी के आउटसाइड में लेके जाएं, like this. Try to keep your back straight as much as you can. If you cannot twist, I'll just do the easier version and then do the harder version. Take your left hand up and wrap around your right knee. And take your right leg back and twist and look back. Twist and look back and hold as much as you can. 3, 2, and 1. Inhale, turn your head, release your hand and relax. Now I'll be doing the harder variation. Again, bend your right leg and take it up and over your left knee. Take your left hand up, right hand back. Try to keep it closer to your back. Take a deep breath and look straight and push your knee towards your elbow and take your hand up and twist. Stay here. This will give you a deeper twist. For 3, keep breathing, look back, above your shoulder, 2, and 1. Inhale, come back in center, and release your leg. Now we'll be doing the left side. So bend your left leg and take it up and over your right knee. Left hand back, right hand up. And for the easier variation, hug your knee with your right hand like this and look back. Hold it for 5, 4. Try to keep your back straight. 3, 2, and 1. Bring your neck in front. Release your hand and relax. You can stretch your leg. Open your eyes. We'll do it again. You can do the same variation or you can do the harder one. Take your leg up and over. Hand up. Right hand up and push your knee to your elbow and go back. You can keep your hand up and you can hold your ankle. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale, turn your neck, release your hand and relax. Sit straight, close your eyes. तीन लंबी गहरी सांसें. Now slowly join your hands. We'll end our session with 1 Om and 3 Shanti. Take a deep breath in. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you very much.
Wow, what an amazing session with Tina. Like रात को before sleeping, the whole body stretching and ending with the Om and Shanti. I think today we are going to have an amazing sleep, 7 to 8 hours. Please put tomorrow in the chat message, mail us. Yeah. So thank you, Dr. Reena, and thank you each one of you for joining this amazing session. No voice, no voice. Can you hear me now? Okay, so thank you everybody for joining this amazing session. And Sorry, आप लोग ma'am. कल- So no voice, no voice. अब मेरी आवाज आ रही है? रीना, can you hear me? Yes, yes, I can hear you. Yeah, we can hear you. Maybe there is an internet problem on his side. Yes, yeah. So thank you everybody and for the amazing session. And I am so sorry हम because हमारा सेशन लंबा हो गया, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना लंबा हो जाएगा. Amma, there is no voice, please. Increase voice. your volume. I think you can increase your volume. It's a mistake from your end. Otherwise, everybody else is able to hear. Okay, so we are sorry for that we are not able to finish on time. But ठीक है, आप ये वाला जो योगा जो हमने सिखाया ये सुबह आप कर सकते हो और कल जैसे प्रोसेस हमने बताया आप वो फॉलो करते हुए अपने गट को आप हेल्दी कर सकते हो. एंड कल हम अगेन अनदर टॉपिक ऑन गट रिलेटेड ही अलग अलग टॉपिक्स पे बात करेंगे. जैसे वी हैव टॉपिक्स लाइक कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी क्या है, ब्लोटिंग क्या है, मूड स्विंग्स क्या है, एंजाइटी, डिप्रेशन, वो सब क्यों हो रहा है, तो हाउ इट इज को रिलेटेड, सब जुड़े हुए कैसे है और उसको कैसे हम अलग अलग तरीके से, जैसे आज हमने सोल्यूशन दिया वैसे अलग अलग सोल्यूशन से हम बात करेंगे, है ना. तो रीना, ओवर टू यू. Yeah, thank you everyone for joining and giving us a good, amazing response. And we are just praying to God कि whatever knowledge थोड़ा बहुत भी हम लोगों को दिया है भगवान ने, we want to share it with you. And you all people, please take in charge, take responsibility for this 7 days. Please, हमने हाथ आगे बढ़ाया है, आप भी हाथ मिलाइए and let's heal together. जो भी, क्योंकि आप लोग आए हैं, आपने ज्वाइन किया है, तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर है. यूनिवर्स ने जब हमको और आपको साथ में मिलाया तो देयर इज सम रीजन कि आपके थोड़े इश्यूज सॉल्व हो जाए थ्रू अस. वी आर द ओनली जरिया, भगवान ने हमको सिर्फ जरिया बनाया है. एंड थैंक यू सो मच एवरीवन. So Deepa is writing, I need the WhatsApp link. So I have given you the number, you message me and I'll add you in the WhatsApp group. And जो और किसी को कुछ भी क्वेश्चन है आज डे 1 रिलेटेड, तो मैंने गूगल डॉक्यूमेंट शेयर किया है, उसमें आप अपना क्वेश्चंस लिख के दीजिएगा और फिर वो हम लोग कंपाइल करके अलग कैटेगरी वाइज हम लोग उसको उसका सबका आंसर करेंगे, है ना. तो once again sorry आज लेट हो गया, but Yeah. tomorrow onwards we're going to stick to time. हम लोग टाइम के अंदर ही हम लोग कंप्लीट करेंगे. And thank you everybody for joining this beautiful session. So let's solve our being, our grassroots level से हमें अपने आप को naturally heal करना है, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है. हमने उसको खाली रॉन्ग कमांड्स दिए हुए हैं और जब आप सही कमांड्स दोगे और सही तरीका करोगे तो ऑटोमेटिकली आप हील कर पाओगे. ओके, सो नमस्ते. yeah, thank you Namaste, everybody. everyone. Thank you. Thanks. Yeah, thank you. Yeah. Thanks. Bye. Bye.